Alright. So this is very important. As a nurse, you must understand that कोई भी question stupid होता नहीं. Okay, कोई भी question stupid होता नहीं. When you are learning, every question that you ask is very very important. For you it is important. हाँ, so nobody will, कोई भी हंसने नहीं वाला कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई, it's wrong. मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे, टीचर को पता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको जानना है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछो. तो आइंस्टाइन ऐसा बोलता था कि दिस आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, व्हाट डिड ही से? He said the important thing is not to stop questioning. So this is very important in nursing also. No, if you are doing something, question कि क्यों कर रहे हैं, इसका क्या है? अगर आप ये ऐसा थिंकिंग करोगे ना, तो आपको सीखना भी आसान पड़ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो questions can never be a problem. People are sometimes afraid to ask questions out of fear of seeming stupid. No, it's never like that. Okay? And yet the smartest people on the planet are often the ones who ask the most questions. मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो सबसे स्मार्ट होते हैं एक्चुअली, if you ask me. Alright? हाँ? So history. Let's go to the history of ये machine. How did this machine come to us? Okay? So you know it has gone through so much stages. Can you see that? कितने stages हो गए machine का? And that has all come because of questions. People have asked questions कि इसको कैसे हम ठीक करें, इसको कैसे ठीक करें. इसीलिए हमने देखा कि from long time to now there have been so many changes that have occurred in this. From right, these questions are the ones that led to discoveries, you know, and it is these discoveries that actually went to the progress in the field of mechanical ventilation. Okay, so it's simple here. Other than questions, you ask questions, you get progress. It's as simple as that. Okay, so everyone thought of a machine. It's called, we thought of a drill machine, and at that moment, so how did this all come? So Bible से आया है. If you ask me, there is even indication कि Bible में भी ऐसा हुआ है. Now there was a nice story, you know. There was a story of a small child who actually died. Who actually died, or had collapsed in the when the at home. And so this particular prophet Elijah, okay, he was walking about and he was quickly called. वो भाग के आया. वो भाग के आया. He actually went close to the child and he breathed life into the child. मतलब क्या हो गया ये? What you call as mouth to mouth. He breathed life into the child, and that is when the patient woke up. Okay, so there is history also saying that he went to the Shulamite family and literally stretched himself out over the boy's body. When he was face to face, foot to foot, hand to hand with the dead child, he breathed into him, and then scripture says that the boy sneezed 7 times and opened his eyes. He was alive. मतलब ये क्या हो गया? Mechanical ventilation हो गया ना at the end of the day, mouth to mouth. You're giving air from outside. You know, and that is why this baby got up, this child got up, isn't it? इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग खांसते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम लोग खांसते हैं तो बोलते हैं God bless you. क्योंकि जब भी खांसते हैं ना तो हार्ट चालू बंद होता है. You know, जिससे आप ऊपर जाके आ रहे हो, इसलिए आप बोलते हैं God bless you. समझ में आ रहा है? हार्ट बंद हो रहा है. So वो हिसाब से, right? So scripture says the boy sneezed 7 times and opened his eyes. He was alive. This is the entire thing. This is called as artificial respiration. Okay, it is not the baby's respiration. It is a respiration that is mouth to mouth that was delivered probably by Prophet Elijah, which caused this. Was it the breath? Was it his weight on the chest? We don't know that. Was it the breath? Or was it the weight on the chest? We know that, but probably that's what it is. This is a Greek physician, surgeon, and philosopher. 1300 years ago. 1300 in the year 1300. Okay, he wrote so many books about mechanical ventilation. 22 volumes. मतलब ये जो आदमी था, ये मेडिसिन के बारे में इतने सारे बुक्स लिखे हैं, because of which we know a lot of things, anatomy, physiology, pathology, pharmacology, neurology, सब is because of him. And he was the final authority. मतलब अगर कुछ पूछना है तो इसको ही पूछना है, यही है सबसे बड़ा आदमी. ऐसा था 1300s में. Okay, it was like that. Okay, but at that time all the experiments that Galileo did were on pigs and monkeys. They did not do it on human beings because allowed ही नहीं था. Church में allowed नहीं था. In the church used to rule the entire place. At one time, church rule करता था. अभी हम कर रहे हैं ना, हम लोग human beings में भी हमको we are able to assess what's happening in a different way. At that time, you could never even open a cadaver. मरा हुआ आदमी को भी खोल नहीं सकते. समझ में आ रहा है? जो हम लोग cadaver open करते हैं in a medical school, हम लोग cadaver open करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है, क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं. वो तभी allowed ही नहीं था. तो उसने जो भी कुछ लिखा, Galen, whatever he wrote it. After dissecting monkeys, after dissecting pigs, to understand what was happening. ठीक है? But then उसका एक बहुत ही junior बंदा था जिसका नाम था Andreas Vesalius.
एंड्रेस बसाइलिस नाम है. ओके, इसने क्या किया मालूम है? इसने he rebelled against the church. Okay, he rebelled against the church and he said I will do human dissections. तो उसने एक्चुअली ह्यूमन डिसेक्शंस करने की कोशिश किया. ओके, ह्यूमन डिसेक्शन. सो कैडेवरी डिसेक्शंस ही इज डूइंग दैट. दैट्स व्हाट ही इज एंड्रू विसालिस. ओके, उसने कैडेवरी डिसेक्शंस किया. लोग देख रहे थे कि ये क्या होता है अंदर, लोगों ने कभी देखा ही नहीं था. एंड दैट इज द टाइम ही मेड दिस बिग बुक. This big book called as De Humani Corporis Fabrica. Okay, this was the entire book that actually told अंदर क्या होता है, lungs कैसा है, heart कैसा है. You understand? This was the most important book that came in literature, which explained a lot of things. इसकी वजह से इसने ये सब किया. इसकी वजह से he was banished from the land because उसने ऐसे सब कर दिया था. But of course, obviously, he was the one who basically did this. Okay, so there is this history is that people have asked questions, people have tried to understand what is happening, and then it has created more discoveries. Now, this is the first way how mechanical ventilation was being. This is one of the very old methods that were being used. 1530 in 1530. Now, it's a very funny thing. This guy is a Swiss from Switzerland. His name is Paracelsus. Paracelsus एक स्विट्जरलैंड का एक physician था. Okay, and from Switzerland, and he tried to do something like this. ये क्या होता है? This is called as bellows. Bellows मतलब क्या होता है? एक आग जलता है ना, तो आग को हम लोग हक छप करके, आपने देखा रहेगा in the when there is a जो मेटल्स के साथ जो काम करते हैं, वो लोग ऐसे एक बड़ा सा बेलोस आग आता है, तो घर पे आग चूल्हा वाला जला के ऐसे करते, तो ये बेलोस होते हैं. उसने ये फायर प्लेस बेलोस के साथ यूके में, यूएस में, अब्रॉड में फायर प्लेस के लिए जलाने के लिए वो यूज करते हैं. तो फायर प्लेस बेलोस से ये यूज्ड टू पुश एयर इनसाइड. You understand? So this was one of the earlier methods of more than hundreds of years in the past that they used to do. फिर 18th and 19th century में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया. तभी मशीन्स आने चालू हो गए. Okay, machines आने चालू हो गए. And this was, these machines like this. You see, that is called the Boulez unit, जहाँ पर पेशेंट अंदर सोया है. हाँ, और इन लोग ये जो एरिया है इसको घुमा के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है. तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट तो लंग्स ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके बुलिश यूनिट बोलते हैं. सिमिलरली दिस आल्सो दे आर पेशेंट सिटिंग इनसाइड अ बॉक्स. हां, आप सोच सकते हो वेंटिलेटर कैसे कहां से कहां आया है. हां, इतना बड़ा यूनिट से इमेजिन, ऐसे इतने बड़े-बड़े यूनिट्स अगर है हमारे हॉस्पिटल में, हां, तो ऐसा 5 मिनट में रखने को जगह नहीं रहेगा हमको अभी. समझ में आ रहा है? ऐसा यूनिट, फिर ऐसे इतना बड़ा यूनिट है. हाँ, ये पंप है, ऐसा पंप लगा के they are having a meter also here that is telling you the pressure. तो प्रेशर ऊपर नीचे called a body box. ऐसा बैठता था पेशेंट अंदर. समझ में आ रहा है? ऐसा बैठता था पेशेंट अंदर, क्योंकि तभी के टाइम पे बीमारी भी ऐसे थे. they were diseases like polio, जो बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम पे. बहुत हम लोग we are happy that we are not in the middle of all those things. तभी पेशेंट को श्वास लेना नामुमकिन हो जाता था. बाकी सब ठीक है लेकिन श्वास नहीं ले रहा है. समझ में आ रहा है? So they were put on these kind of equipments, which were at that time called as ventilators. Now look at this. He is actually sitting inside. The dog is getting ventilated from that pressure, okay, and he is operating on the dog. So OT भी करते थे लोग. दोबारा से OT भी करते थे अंदर बैठ के, मतलब अंदर नेगेटिव प्रेशर चल रहा है और उसके साथ he is actually operating also. Look at that. Now this person, okay, this person is probably the inventor of the smaller kind of ventilators of positive pressure breathing. Okay, his name is Philip Dringer. Philip Dringer नाम है उनका. Okay, उसने जो वेंटिलेशन का, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो पूरा हिस्ट्री इसने बदला. Okay, तो ये देखो एक बिल्ली को अंदर डाला हुआ दिख रहा है, एक बिल्ली को अंदर डाला हुआ है. हाँ, and he has made a small body box like what we just now saw. And he invented something called as the iron lung. Iron lung. इसको हम क्या बोलते हैं? Iron lung. Iron lung was one of the biggest ventilators ever. You have was the most used ventilator ever in the 1900s, 1800s. Okay, 1800s when they started using it. This is how it looked. It is available now also. There was the last patient is still alive some months ago on this particular ventilator in one of the hospitals in US. This is the kind of ventilator it was. Okay, this is the kind of ventilator it was. So what is this? This ventilator means the patient used to lie inside. This is called as iron lung. इसको क्या बोलते थे? Iron lung. लेकिन ये अभी तक पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, अभी तक नेगेटिव प्रेशर है. इट्स डिफरेंट. अंदर नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, पेशेंट अंदर सो रहा है, नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, और नेगेटिव प्रेशर बन के पेशेंट का
छाती ऊपर नीचे हो रहा है, अंदर से नहीं है, वी आर नॉट पुटिंग अ ट्यूब इनसाइड, बाहर से है। मतलब वो जो ट्यूब के अंदर सोएगा तो नेगेटिव प्रेशर बनता है, नेगेटिव प्रेशर बनता है तो लंग्स ऊपर जाते हैं नीचे जाता, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव प्रेशर, ओके, इट्स कॉल्ड आयन लंग। So this is how it is. You can see this lady, this is recent video, it's not very old. So that's how it looks, and then came the birth of this particular ventilator. That was iron lung. This is the Mark 70, bird ventilator. उसके बाद ऐसे वेंटिलेटर्स आने लग गए, पॉजिटिव प्रेशर आने लग गए, हाँ, so ऐसे वेंटिलेटर्स आने लग गए। These are all for us, these are all parts of the first generation of the ventilators. हाँ, फर्स्ट जनरेशन। अभी ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, इसमें ना कोई कार्डियोबॉली मेंटेन कर सकते हैं, ना कोई प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, हाँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू देन केम दीस काइंड ऑफ वेंटिलेटर्स, जिसमें वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसमें ट्रिगर लगा सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं था ना, अभी तक खाली बेलोस था ऐसे सब था, इसमें प्रेशर फाइंड आउट हो रहा है, इसमें पता चल रहा है इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कैसे चेंज होना है, अभी तक वो सब नहीं था, समझ में रहा है। अभी ये सब वेंटिलेटर्स आने के बाद वी हैव रियलाइज्ड इंस्पिरेशन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, ट्रिगर कैसा है, लिमिट कैसा है, साइकिल कैसा है, लेकिन ये सब करने के लिए कितना टाइम लग गया सोचो, हाँ, इतने बड़े बड़े वेंटिलेटर्स अलार्म आने के लिए, दिस आर ऑल अलार्म सेटअप कमिंग, ओके, आने के लिए कितना टाइम लगे, तब जाके एनेस्थीसिया टाइप वेंटिलेटर बनने लग गया। ये एनेस्थीसिया टाइप वेंटिलेटर जो आईसीयू में यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। फिर ये सेकंड जनरेशन वेंटिलेटर्स आ गए। फर्स्ट जनरेशन में देयर वाज नथिंग, नो अलार्म कुछ नहीं था, यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में देयर वाज नो अलार्म्स, फर्स्ट जनरेशन में देयर वाज नो ट्रिगर, देयर वाज नो लिमिट, बस मैं तो अंदर पॉजिटिव प्रेशर देने वाला हूं, मैं अंदर हवा डालने वाला हूं, ऐसा था वेंटिलेटर आमू बैग जैसा, समझ में रहा है, मैं ठप 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 करता रहूंगा, समझ में रहा है। फर्स्ट जनरेशन उसमें ना प्रेशर पता चलता है, अभी पेशेंट कभी कॉफ करता है, हमारा वेंटिलेटर कैसे रुक जाता है, हमारा वेंटिलेटर अलार्म देता है, कुछ नहीं है वहां पर, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो वेंटिलेटर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं अगर श्वास कर रहा हूं तो वेंटिलेटर शायद श्वास अंदर नहीं देगा, बाहर ले लेगा, वेंटिलेटर को कुछ आइडिया नहीं है बॉडी को क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो फर्स्ट जनरेशन में ऐसा था, ना ट्रिगर अलार्म था, ट्रिगर मतलब क्या हो गया, इट स्टार्ट्स द ब्रेथ, तो वेंटिलेटर को पता नहीं पेशेंट को भी सांस ले रहा है, वो तो अपने आप दे ही जा रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, उसको पता नहीं है कि पेशेंट श्वास ले रहा है तो मेरे को उसको कभी श्वास लेना ज्यादा नहीं देना, ऐसा नहीं है, हाँ, उसका पेशेंट का प्रेशर अगर बढ़ रहा है, अगर पीक प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको पता नहीं क्या करना है, समझ में आ रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ वेंटिलेटर दैट वाज देयर इन द फर्स्ट जनरेशन। देन द सेकंड जनरेशन वेंटिलेटर के जहां पर देखो ऐसा डायल्स आने लग गए, जहां पर प्रेशर मॉनिटर चालू होने लग गया, ओके, दे वर एबल टू फिगर आउट नेगेटिव एंड दे वर एबल टू फिगर आउट दैट इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को चेंज चाहिए, okay, and as time goes ventilators became quite different, these are all the old generation ventilators that were there, then came this particular ventilator, okay, then came that particular ventilator that we talked about just now, okay, that was the ventilator that we talked about just now. This is the so okay, so okay, so now going back, it took a long time before you could understand what is happening. So going back to what this was what the iron lung was, okay, this is a photo of the iron lung, कैसे लोग यूज करते थे देखो, हाँ, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इतने बड़े बड़े वेंटिलेटर्स बनने के पहले ऐसे वेंटिलेटर्स यूज होते थे, ओके, ऐसे वेंटिलेटर्स, लुक एट दिस, सो ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर पेशेंट का मुंह रहता था, ही वाज प्लेस द पेशेंट इनसाइड द मशीन, हाँ, मशीन के अंदर पेशेंट रहता था, ये हमारा नर्स है देखो, वाओ शी इज डूइंग इट, ओके, शी इज ओपनिंग इट, ओपन कर रहे हैं कबर्ड जैसा, उसके अंदर पेशेंट जाके सो जाता, सुला देते पेशेंट उसके अंदर वो लोग, ओके, इसको हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं, पेशेंट को उसके अंदर सुला रहे हैं, ओके, एंड देन शी इज मूविंग आउट, ठीक है, हाँ, दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज वेयर द पेशेंट यूज्ड टू स्लीप, ओके, दिस इज वेयर द पेशेंट यूज्ड टू स्लीप, दैट्स द नर्स, एंड द नर्स यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस पेशेंट वेरी वेरी वेल। ये तो अभी सिंगल हो गया, ये देखो मल्टी स्पेस आ गया, मल्टीपल, एक ही इसमें मल्टीपल, ओके, समझ में आ रहा है, हाँ, जस्ट पुट दिस ऑन, एक ही मशीन में चार, and see how she is taking care from outside, she goes inside also, ओपन करके अंदर भी जाते हैं, रूम है जिसके अंदर सोए हुए हैं, और ये देखो दिस इज द बर्थ ऑफ द फर्स्ट आईसीयू, ये जो आयन लंग्स हम बात कर रहे थे, ये पोलियो के टाइम पे आईसीयू बना, पोलियो देयर वाज नथिंग लाइक आईसीयू, पोलियो जब भी आया तब जाके आईसीयू बना, समझ में आ रहा है, तब जाके आईसीयू बना, तो ये आईसीयू से दिख रहा है आपको कितने पेशेंट वेंटिलेटर पे, देखो ऐसा आईसीयू का आप काम करेगा, सोचो कैसे होगा, दिस वाज द आईसीयू, दिस वाज द आईसीयू, मतलब असेंबली हॉल जैसा था, और वहां पर ऐसे आयन लंग्स रखे हुए रहते थे, okay, so this is the birth, this is the importance of a birth of an ICU iron lung के साथ जन्मा था, समझ में आ रहा है, तो iron lung के साथ, it was not all these kind of sophisticated machines that I showed you first generation, second generation, ऐसा नहीं था, okay, iron lung, ठीक है, this is another ventilator, look at this,
उसको अभी आयरन लंग इतना बड़ा था ना, तो उसको छोटा करने का था उनको, तो इन्होंने ऐसा एक पल्सेटर बना दिया। ये कैसा है, वेरी सिमिलर टू दिस। यहाँ पर एक राउंड है, वो एक प्रेशर है, और ये प्रेशर जूम 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 दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है, प्रेशर नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर, समझ में आ रही है? हाँ, सो दिस इज द क्यूरियस पल्सेटर। क्यूरियस मतलब ऐसा सामान रखने का, अराउंड योर लाइक अ जैकेट, क्यूरियस पल्सेटर। तो क्यूरियस पल्सेटर बना, ओके, बिकॉज़ आयरन लंग तो कितना बड़ा हो गया, उसको थोड़ी ना लेके जा सकता पति देव, हाँ, इसकी वजह से क्यूरियस पल्सेटर बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे डिवाइसेस बनाए और छोटा करने की कोशिश किया, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे एक आयरन, जो बड़ा आयरन की जगह पे खाली चेस्ट को इन्फ्लेट करने के और एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के दो चीजें होंगी, तो एब्डोमेन भी इन्फ्लेट हो रहा है, चेस्ट भी इन्फ्लेट हो रहा है, एब्डोमेन में चेस्ट, ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐसे एक डिवाइस बनाया। सो see that she now he's changing the pressure। देखो उसके ऊपर एक प्रेशर का नॉब है, वो चेंज कर रहा है वो, हाँ, वेंटिलेटर में और कुछ है ही नहीं, ना अलार्म है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, हाँ, खाली वो एक नॉब है, वो चेंज कर रहा है, पैर से वो ऑपरेट कर रहा है, देखो, हाँ, पैर से ऊपर नीचे कर रहा है, और वो वेंटिलेटर के ऊपर नीचे प्रेशर की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, ओके, see this is the abdomen, this is only abdomen, हाँ, खाली abdomen में करके लोग प्रेशर ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तब उसके बाद हाँ, उसके बाद कोई बता सकते ये कौन है, ये आदमी कौन है? हाँ, सो ये आदमी जो है ना, हिज नेम इज हेनरी ड्रेगर। हम लोग ड्रेगर सुनते हैं ना, ड्रेगर वेंटिलेटर, ये आदमी है हेनरी ड्रेगर, हाँ। सो इट इज दिस हेनरी ड्रेगर हु मेड द फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वेंटिलेटर दैट टाइम। इट वाज कॉल्ड एज पल्मोटर। और ये तो क्या मिल रहा है, ये पोस्टमैन आके उसको अवार्ड दे रहा है कि ये पेटेंट है तुम्हारा, कि आपने बनाया है, उसके लिए पेटेंट बना के उसको दे रहा है पोस्टमैन उसको। ये उसका फोटो है कि वो ही वाज एक्चुअली क्या है, वॉच मेकर था, वॉच बनाता था, वॉच। तो उसने मशीन बनाया जो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में जा सकता है। अभी तक कोई भी मशीन ऐसा नहीं था जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जा सकता है, खाली आगे जा रहा है छोड़ रहा है, आगे जा रहा है छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा उसने एक बनाया कि वो इंस्पिरेशन में जाएगा, एक्सप्रेशन भी करेगा। इसका नाम था पल्मोटर, ये मशीन का नाम था पल्मोटर, ओके। दिस इज द पल्मोटर। सो लुक नाउ हाउ इट हैज बिकम स्मॉल नाउ। अभी तक क्या सब बड़े चीजें थे, अभी तो वैसे छोटा हो गया, हां। इधर देखा, देयर इज अ मास्क आल्सो दैट इज समथिंग ना, आपको तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को करने की कोशिश की, समझ में आ रहा है? दिस वाज कॉल्ड एज पल्मोटर, ओके। ये पल्मोटर उन्होंने ऐसा ह्यूज बनाया है, ड्रेगर इतना बड़ा कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है, उसको इतना सारा बना दिया पल्मोटर, पूरा पल्मोटर बन रहा है, देखो छोटा पल्मोटर बन रहा है सब जगह। और देखो वहां पर पेशेंट एक्चुअली स्विमिंग पूल में ड्राउन हो गया था, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर पहली बार जिंदगी में उसको दे के उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, हां। पल्मोटर विद द यूज ऑफ द पल्मोटर, दिख रहा है, हां, यूज ऑफ पल्मोटर। सो पल्मोटर बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन हिस्ट्री। इनफैक्ट ये ऐसा हो गया कि हम जब सीपीआर के लिए जा रहे थे, लोग उसको पीछे पहन के भागते थे, ओके, पीछे पहन के भागते, लुक एट दिस, हां, ऐसा हो गया था पल्मोटर, हां। तो अभी क्या हो गया, हमने क्या देखा, बड़ा आयरन लंग से निकल के we have now come to a smaller device called as pulmotor, okay। उसके बाद ये मशीन्स आ गए। ये मशीन्स ना हमारे जो एकदम सीधे जैसे डॉक्टर बजे होगा या डॉक्टर बड़ेकर होंगे, उन्होंने ना ये सब मशीन के साथ काम किया। इसका नाम है बर्ड, इसका नाम है बर्ड वेंटिलेटर। ये बर्ड वेंटिलेटर में देयर वर मोर फीचर्स टू अंडरस्टैंड a little bit about positive pressure, how much you're giving, कितना दे। अभी तक तो कितना दे रहा है आपको पता ही नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता करने के लिए। अभी इसमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि तुमने इतना प्रेशर दिया है, तुमने इतना वॉल्यूम दिया है, ये पहली बार पता चल रहा है। अभी तक कुछ नहीं पता था, पल्मोटर में भी नहीं पता था कितना आप दे रहे हैं, पल्मोटर में खाली इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, अभी इसमें पता चला कि हम कितना दे रहे हैं। तो ये जो वेंटिलेटर आया था ना, it saved a lot of lives, but it also created lot of damage to patients। ऐसा बोलते थे कि अगर ये वेंटिलेटर अगर लग गया तो आदमी ऐसा सब था, हाँ, क्योंकि इसमें कोई अलार्म नहीं है, इसमें कोई जैसे ट्रिगर नहीं है, इसमें पेशेंट के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। ये भी वॉल्यूम दे रहा है कि समझ में आ रहा है कितना वॉल्यूम में कितना प्रेशर जा रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ। सो 1970s ये सब आ रहे, ये सब वेंटिलेटर्स आ गए, ओके। और ये वॉश वेंटिलेटर बोलते हैं, हाँ, इसको एक्स्ट्रॉम बोलते हैं, इस नए वेंटिलेटर्स के में तो कट कर दो, ठीक है। जब नो ट्रिगर पर, नाउ व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इज व्हाट स्टार्ट्स द ब्रेथ। मतलब वेंटिलेटर को पता होना चाहिए ना, वेंटिलेटर शुड अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टार्ट द ब्रेथ। समझ लो मैं श्वास ले रहा हूं, वेंटिलेटर मेरे साथ श्वास लेना चाहिए। अगर मैं श्वास ले रहा हूं, वेंटिलेटर मेरे को श्वास नहीं दे रहा है, मतलब क्या मतलब होगा? इट इज नॉट हेल्पिंग मी। अभी तक का वेंटिलेटर्स में देयर वाज नो ट्रिगर। हम लोग आयरन लंग की बात किया, हम लोग ने ठीक है, फोन मतलब कट कर दे।
हाँ सो अभी तक का वेंटिलेटर में अभी तक हम लोग को ये नहीं समझ में आया कि ट्रिगर वेंटिलेटर को नहीं पता था कि ट्रिगर क्या है, मतलब वेंटिलेटर साथ साथ में श्वास ले रहा है। जस्ट इमेजिन आप श्वास ले रहे हो, वेंटिलेटर तुमको श्वास नहीं दे रहा, आपको श्वास चाहिए वेंटिलेटर नहीं दे रहा, और जब भी नहीं चाहिए तभी दे रहा। कितना डिफिकल्ट होगा कोई पेशेंट को, कितना डिफिकल्ट होगा कोई भी पेशेंट को श्वास लेना, तो उसको सेडेशन ज्यादा करना पड़ेगा, उसको पैरालाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि ट्रिगर ही नहीं है ना, वेंटिलेटर सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है पेशेंट के साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये सब वेंटिलेटर जो थे इसमें ट्रिगर ही नहीं था। मतलब आप अगर पूछोगे तो सिंपल है, लगाओ छोड़ दो, हाँ, लेकिन गलत हो जाएगा, पेशेंट खराब हो जाएगा। इसलिए पेशेंट मरते थे जब वेंटिलेशन पे रहते थे, पेशेंट मरते थे। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज कंप्लीट एसिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसमें प्रेशर है, अभी समझ लो पेशेंट खांस रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, न्यूमोथोरैक्स है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसमें वो सब मॉनिटर ही नहीं है, नथिंग इज देयर, सो नो ट्रिगर। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। फिर यू नो लेट इन 1965 67, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, जस्ट 50 इयर्स अगो, हां, पता चला ये एंटिटी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये पता चला जो हमने डिस्कस किया था। ARDS मतलब देयर इज प्रॉब्लम इन द लंग, हां, द लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हां, ये जब भी आया सब लोगों को पता चला कि हमको मॉनिटरिंग बहुत लगेगा। हां, विदाउट दिस पेशेंट्स आर डाइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट मॉनिटर वी हैव टू, व्हाट हाउ मच टू गिव, पेशेंट्स आर डाइंग। ये हमको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये ARDS जो जब आया तब जाके वेंटिलेटर चेंज होने चालू हो गए, तभी पता चला कि the theoretical relationship of this syndrome to alveolar surface active agents is postulated. Positive end expiratory pressure was most helpful. PEEP अभी तक हमने बात नहीं की। PEEP का जरूरत तो भी आया जब ARDS चालू हो, लोगों को पता चल गया कि ARDS नाम का एक चीज है। ओके, तो PEEP का जरूरत था, तो 1970s और 1980s ऐसे वेंटिलेटर बने जहां पर PEEP दे सकते थे हम। ओके, तो ट्रिगर भी आ गया, PEEP भी आ गया, ठीक है। हाँ, ट्रिगर आ गया, हाई प्रेशर अलार्म आ गया, लो रेट हाई टाइडल वॉल्यूम अलार्म आ गया, अलार्म्स आ गए पहली बार 1970s। अभी तक तो अलार्म ही नहीं था, 70s और 80s में पहली बार अलार्म आया, पहली बार जिंदगी में अलार्म आया। समझ में आया? तो अलार्म आने के बाद हमको समझ में आ गया कि अच्छा अलार्म, तो वी आर मेकिंग वेंटिलेटर मोर एंड मोर सेफर, मोर एंड मोर सेफर। ये जो वेंटिलेटर है इसको सर्वो बोलते थे। आई यूज्ड टू वर्क विद दिस वेंटिलेटर। हां, हम लोग के पास ये वेंटिलेटर था, ठीक है। तो ये वेंटिलेटर इसके साथ हमको अलार्म्स, हमारे पास ट्रिगर, हमारे पास मोड्स, प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल आने चालू हो गए। समझ में आ रहा है? ये दो मोड आने चालू हो गए। ओके, एंड फिर ये जो वेंटिलेटर है ये भी तो एग्जाम में पूछा गया, ये जो वेंटिलेटर है जो लास्ट मिनट में एग्जाम, इसको हम सर्वो 900 सीसी बोलते हैं। हां, अभी आप जाओगे तो कोई भी हॉस्पिटल में अभी भी रहेगा ये वेंटिलेटर। तो इस वेंटिलेटर के साथ हम पता चलता था हमको प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, CPAP, देखा मोड्स अभी आ गए, अभी तक मोड्स नहीं था। इस वेंटिलेटर के बाद मोड्स आ गए, यहाँ पर सब थोड़े से लिमिट्स आ गए, एयरवे प्रेशर लिमिट आ गया। हाँ, एक मिनट वॉल्यूम कितना जा रहा है वो समझ में आ गया। तो दो तीन चीजें समझ में आने लग गई वेंटिलेटर आने के बाद, ठीक है। हाँ, which was our work cost। उसके बाद there has been integration, सॉफ्टवेयर बनने चालू हो गया, माइक्रोचिप्स बनने चालू हो गया, it became much more simpler। अभी तक सब बैट्स के ऊपर बेस्ड था कि फिजिकली पता चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर आ गया। जब सॉफ्टवेयर आ गया तो ये सब इंटीग्रेट हो गया, क्लोज लूप कम्युनिकेशन आ गया, क्लोज लूप कंट्रोल, मतलब पेशेंट कितना ले रहा है वो देख के नेक्स्ट ब्रेथ देगा, पेशेंट कितना चाहता है वो देख के नेक्स्ट ब्रेथ देगा वो। समझ में आ रहा है? हाँ, पेशेंट जब भी श्वास ले तभी वो दे रहा है ब्रेथ। हाँ, पिछले एक महीने में 1 मिनट में कितना मिनट वेंटिलेशन किया वो देख के नेक्स्ट ब्रेथ इंक्रीज करेगा, तो क्लोज लूप कम्युनिकेशन चालू हो गया। ओके, स्मार्ट अलार्म सिस्टम्स आने लग गए कि भाई ये इसको पहले से पता चलने लग गया कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, प्लाटो प्रेशर आ गया, मॉनिटरिंग आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ, so this was the integration that occurred and now we have these kind of ventilators that are there. Okay, that's why what you must do is you must respect